So, hey my friends, welcome. So, in this video, we will learn something new from the answer booklet of Shriti Sharma, who has secured the first rank, and we will also see like how did they write, how did they handle these kinds of questions in like real examination. Of course, this is the answer booklet, but we will just get to have the idea what did they use, means so how they wrote all the questions, how did they write everything, what kinds of strategies were there, right? Like we will get to know everything in this video, and if you're interested you can just like continue watching this video, or else you can just go somewhere and I don't know what will you do. But yeah, you just have to invest your time everywhere, whenever you're watching, whenever you're doing anything, you just have to think before doing that stuff, like am I wasting or investing my time here. So these are the valuable videos, I guess, because we will get to know the strategies, right? So that's our part, like how we have to write. We'll just get to know everything from these toppers, okay, the answer booklet of this topper. So just like I will just start this video. If you are still here, it means you are a serious aspirant, and we'll just everything, all the terms, everything, whatever have been used in this answer and questions, we will know everything. Okay, so yeah, I'll just start the video now. So some people feel that religion is a source of peace and virtue, while others believe, source of virtue and peace and virtue, while others believe that it is root cause of violence and chaos. Okay, we have to pronounce chaos. Okay, chaos. Give your perception in this regard with due justification. So this is our question here. So we will try to check how did she handle this kind of question here. So some people, कुछ लोग क्या महसूस करते, क्या मानते हैं, रिलीजन इज अ सोर्स ऑफ पीस, लेकिन क्या है पीस यानी अमन शांति का, ओके, सुकून का क्या है, एक जरिया है, एक सोर्स है। और वर्ची क्या होता है, जिसमें हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल्स होते हैं, मतलब जो सही गलत को अच्छे से समझता है, वो दो चीजों का क्या है कि सोर्स है, क्या रिलीजन एक सोर्स है। व्हाइल अदर्स बिलीव दैट इट इज द रूट काउज ऑफ वायलेंस एंड chaos। अब दूसरे उसी तरफ क्या मानते हैं, क्या भरोसा करते हैं कि भाई ये जड़ है, कहीं की फसाद की जड़ है, मतलब वायलेंस की जड़ है और chaos की जड़ है। जो झगड़े फसाद होते हैं, वायलेंस उसकी जड़ है, उथल पुथल हो जाती है, chaos, रिलीजन के नाम पे लोग भगदड़ करते एक दूसरे को मार देते हैं, तो वायलेंस है, इसका रूट काउज है, बोल रहा है रिलीजन, दूसरे लोग ऐसा मानते हैं। ओके, सो गिव योर परसेप्शन इन दिस रिगार्ड विद ड्यू जस्टिफिकेशन। अब परसेप्शन क्या है, पर्सपेक्टिव आपको पता है, पर्सपेक्टिव आपका नजरिया, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आप उसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वो आपका परसेप्शन देना है इस रिगार्ड, यानी इस रिलीजन के रिगार्ड में कि ये पीस वर्च्यू है या नहीं, सोर्स ऑफ पीस और वर्च्यू है या नहीं, या ये वायलेंस और chaos का मतलब रूट काउज है। आपको ये जस्टिफिकेशन, आपका परसेप्शन भी देना है और जस्टिफिकेशन भी देना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ओके, एंड दिस इज अबाउट 150 words. Okay, we have the limit here of writing this answer. So okay, I'll just start the answer now. आपको दिख रहा है सब, right? So the divine command theory, along with Gandhiji's idea of Ram Rajya, place religion at the center of ethical theory. देखिए अब the divine command theory क्या है कि जो गॉड का जो क्या कहेंगे कमांड है, जो गॉड ने, जो ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने जो भी हमें कमांड दिया है वो सही है। मतलब वो अगर बोलेगा हम जो काम कर रहे हैं हम उसी को मानते हुए करेंगे। कि जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई भी रिलीजन क्या कहता है कि भाई चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करना है, तो वही क्या है, गॉड का क्लेम एक रूल है, रेगुलेशन है, राइट, तो हमें उसके हिसाब से काम करना है, वो राइट हो रॉन्ग हो। एक रिलीजन उसे राइट मानता है, दूसरा रिलीजन उसे रॉन्ग मान सकता है। दैट्स नॉट द इशू हियर, दैट्स नॉट अवर टॉपिक। व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिवाइन कमांड, लाइक गॉड ने कुछ कह दिया है और वो सही है या गलत है, वो रिलीजन को मानने वाला, फॉलो करने वाला, राइट। तो गॉड का यहाँ पे क्या है, क्लेम रिक्वायर है, गॉड का रूल यहाँ पे रिक्वायर है इस थियरी में कि गॉड जो रिक्वायर करता है हमें वही मानना है। जैसे स्टील नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, तो एक आप एग्जाम्पल रख सकते हैं अलॉन्ग विद, यानी साथ किसके, गांधी जी आइडिया ऑफ राम राज्य, गांधी जी का आइडिया राम राज्य का। अब राम राज्य यानी है कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, ये राम राज्य की बात ये कर रहा है यहाँ पर कि भाई देखिए कोई भी रिलीजन जस्टिस की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, ट्रूथ की बात करता है, राइट, जस्टिस, इंसाफ, क्योंकि इक्वलिटी सब एक बराबर है, ट्रूथ यानी सच्चाई, तो ये उसकी बात कर रहा है। कोई ऐसा लैंड होना चाहिए, ऐसा कंट्री होना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीजें हो, राइट। ये क्या करते हैं, प्लेस यानी जगह का नहीं, प्लेस यानी रखते हैं रिलीजन को एट द सेंटर ऑफ इथिकल थ्योरी, एट द सेंटर ऑफ इथिकल थ्योरी, यानी इथिकल थ्योरी क्या है कि कौन सी चीज बहुत सही है, कौन सी चीज रॉन्ग है या राइट है,
वो हमें क्या बताता है, इथिकल वे बताता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो तो सही है गलत, आपके अंदर इथिकल मतलब मोरल हो गए तो वो आपको पता लग जाएगा। तो वो एक इथिकल थ्योरी है कि कोई काम सही है गलत, वो चीज़ ये बताता है इथिकल थ्योरी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ पीस एंड वर्च्यू। देखो पहला क्वेश्चन का कीवर्ड क्या था कि रिलीजन एक पीस एंड वर्च्यू का क्या है, सोर्स से जरिया है। तो अब उसको किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं वो बता रहे हैं। ओके, आइडिया ऑफ देयर इज वन गॉड, ओके, नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब आइडिया ऑफ वन गॉड यानी देयर इज वन गॉड, सिर्फ एक ही गॉड है, एक ही खुदा है, एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, सब ऐसा मानते हैं। ओके, नोन बाय डिफरेंट नेम्स मतलब इसे दूसरे नाम से जानते, कोई भगवान को दूसरा नाम देगा। ओके, वैसे वाला। सो देखिए एज जैनिज्म, ओके, अनेकांतवाद राइट, एंड सूफीज्म थ्योरी ऑफ वहादतुल, ओके, वहादतुल वजूद राइट। तो अब अनेकांतवाद क्या कहता है कि भाई जो भी रियलिटी है वो कॉम्प्लेक्स है। ओके, जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, हम उसे महसूस कर सकते हैं लेकिन वर्ड्स में उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, जो ट्रूथ है, हमारी जो रियलिटी है वो कॉम्प्लेक्स तो बहुत है और उसके कई सारे क्या है, पहलू है, लेकिन जब हम इसे वर्ड्स में आएंगे तो हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब वो एक अजीबी लेवल की, हाई लेवल की क्या होती है, क्या क्या थियोरी होती है, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। और जो नॉन वायलेंस भी है, ये भी बात बताता है कि भाई एक टूल की तरह से इस्तेमाल करना है हमें नॉन वायलेंस को। और रियलिटी क्या है, रियलिटी इज रिलेटिव, ये भी एक बात बताता है अनेकांतवाद। देखिए सूफीज्म क्या है, थ्योरी ऑफ वहादतुल वजूद। वहादतुल वजूद आपको पता है, वहादतुल वजूद के माने क्या होते हैं आपको पता है, मतलब क्या है वजूद के माने क्या होते हैं। देखिए एग्जिस्टेंस, मतलब कोई है वजूद में, कोई मतलब है दुनिया में। तो वहादतुल वजूद क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ वननेस, एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड, कोई तो है एक और उसका वजूद है। ये ऐसी थियोरी मानता है कि मतलब बहुत सारा होगा इसके ऊपर, 10-20 किताबें लिखी हुई है, 20-30 पेजेस हो गए, लेकिन हम एक सिंपल लाइन में देख लेते हैं। और देखिए हमें ज़्यादा चीज़ याद रखने में नहीं, उसे खाली सपोर्ट करने के लिए एक एक लाइन लिखी हुई है और उसके साथ एग्जाम्पल्स लिखे हुए राइट। ये ज़्यादातर फर्स्ट रैंक होल्डर की ये स्ट्रैटेजी होती है। हमने बहुत सारे टॉपर्स के देखा कि एक लाइन होती है, उसके नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके उस लाइन को जस्टिफाई करते हैं राइट। चाहे वो स्कीम का हो, गवर्नमेंट के सपोर्ट का हो, या कोई रिलीजन से रिलेटेड हो, इस वीडियो में ऐसी सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ऐसे ही हमें भी इस्तेमाल करना है, पूरा रट्टा मार के 10-20 पेज हमें लिख के नहीं आना है, 3-4 लाइन नहीं लिखना है, सिर्फ एक लाइन उसे एग्जाम्पल देके हम जस्टिफाई करना है कि उसे सपोर्ट करना है। लीड्स टू कम्युनल हार्मोनी एंड पीस। अभी क्या है, भाईचारे को, हार्मोनी को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। मतलब हार्मोनी यानी मेल मिलाप को, ये सद्भाव को, क्या, और पीस यानी सुकून को क्या करता है, ये कम्युनल मतलब सब लोग आपस में मिल के रहेंगे। ये सारी चीज़ें जिसमें रिलीजन का एक पॉइंट क्या है कि भाई एक गॉड है तो वो सब मानते हैं, तो उसमें क्या रहेगा, थोड़ा तो मेल मिलाप रहेगा कि भाई तेरा भी रिलीजन यही कहता है और मेरा भी रिलीजन यही कहता है राइट। और फूल वालों की सैर फेस्टिवल जो दिल्ली में होता है, उनका भी एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। और देखिए एक है चैरिटी, जो चंदा वगैरह होता है। इस्लाम आइडिया ऑफ ज़कात, इनकरेज ह्यूमैनिटी राइट। सो क्या ह्यूमैनिटी, सो ये क्या, ज़कात जो होता है कि हम पैसे देते हैं, चंदा समझ लीजिए एक तरह का, या फिर जो मुसीबत में है उसे पैसे दी जाते हैं, तो वो क्या करता है, इनकरेज करता है इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को। कोविड कंटेक्स लंगर बाय गुरुद्वारास, देखिए सब रिलीजन का एक पॉइंट लिया गया है। कोविड में जो लंगर होते हैं, जैसे गुरुद्वारा में जो सिख पीपल क्या करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, बिना कोई रिलीजन जाने सबको खाना दिया जाता है, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। देखिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इंडिविजुअल लिविंग। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा मतलब, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस लिविंग, इंडिविजुअल लिविंग, काउज ऑफ वायलेंस एंड ब्लडशेड। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कुछ भी भड़काऊ भाषण दे सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक है, इंडिविजुअल लिविंग है, वो भी अगर उसके पास पैसा नहीं है, एजुकेशन ठीक नहीं है, तो वो भी क्या कर सकता है, क्योस मारधार कर सकता है, वायलेंस को आगे पहुंचा सकता है, मतलब सोसाइटी में कर सकता है वो वाली चीज़ें। फिर सोर्स ऑफ एनिमोसिटी, मतलब क्या है, ब्रूटल हॉस्टिलिटी, मतलब कट्टर दुश्मनी जिसे हम कहेंगे, वो वाली चीज़। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ दारुल हर्ब एंड दारुल इस्लाम। अब देखिए दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम क्या है। दारुल हर्ब एक ऐसा टर्म है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे नॉन मुस्लिम क्या करता है, रूल करता है, और वहाँ पे जो शरिया है, जो इस्लाम का कानून है, वहाँ पे माना नहीं जाता है, तो हम उसे दारुल हर्ब कहते हैं या हर्ब कहते हैं। और दारुल इस्लाम क्या होता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, इस्लामिक कानून भी, और वहाँ का जो मेन लीडर है वो भी इस्लाम है, मुझे सऊदी अरेबिया वगैरह। दारुल हर्ब जहाँ पे इस्लाम, जो मुसलमान है वहाँ पे वो लीडर नहीं है, और वहाँ पे शरिया कानून भी क्या है, फॉलो नहीं किया जाता, इस्लामी कानून भी फॉलो नहीं किया जाता राइट। इनकरेज रिलीजन, ओके, फंडामेंटलिज्म एक चीज़। और ये क्या करता है, इनकरेज मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, इस्लाम के जो रिलीजन मतलब इस्लाम को ही फैलाना है, वो वाली चीज़ें। ये ISI का, यहाँ पे ISI का एग्जाम्पल दिया गया है, आईसिस का, देख सकते हैं अभी भी। देखिए इनसाइडर एंड आउटसाइडर कॉन्सेप्ट। इनसाइडर यानी अंदर बाहर, जो मतलब हम जैसे एक स्टेट में रहते हैं तो स्टेट के लोग अपने आप को, कोई बाहर से आएगा तो उसे कम समझेंगे, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। सुपीरियरिटी ऑफ एनी वन रिलीजन, ऑफ वन रिलीजन, मतलब
अगर से कोई बाहर का भी आता है हमारे देश में, हमारे स्टेट में भी, कभी गौर करोगे आपने भी, तो हम उसे कम समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ओके, जैसे राइट्स यहाँ पे एग्जांपल दिया, मुजफ्फरपुर नगर वायलेंस का, अब ये देख सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद देखिए कॉन्फ्लिक्ट ओवर मटेरियल रिसोर्सेस, लाइक अब जो भी चीज़ बनी हुई है, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, तो उसके भी ऊपर डिस्प्यूट हो सकता है। तो यहाँ पे बाबरी मस्जिद का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, राइट। फिर देखिए बट रिलीजन इज इसेंशियली अ कैरियर ऑफ पीस, लेकिन अब बात क्या हो रही है, यहाँ पे परसेप्शन बताया जा रहा है, राइट, कि रिलीजन सच्ची में तो स्टार्टिंग से ही मतलब इसेंशियली महत्वपूर्ण, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि वो कैरियर ऑफ पीस है, मतलब वो पीस को लेके जाने वाला है। लेकिन इट इज़ हाउ इट इज़ यूटिलाइज, मतलब ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा उस पर निर्भर करता है कि कोई इंसान रिलीजन को कैसे अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है, वो उस पर ध्यान, मतलब उसके ऊपर ही डिसाइड होगा कि उसका रिलीजन कैसा है। मतलब हमें पता लगेगा कि कोई रिलीजन है, वो उसे फॉलो करता है, लेकिन उसकी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है, इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए रिलीजन को मॉडिफाई कर रहा है, वैसी भी बात हो सकती है कभी, राइट, विच डिटरमाइंस द आउटकम। अब जो रिलीजन है, जो रिलीजन को मानने वाला है, वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसके ऊपर से हमें रिजल्ट नजर आएगा। सो गांधी जी दस आर्ग्यूज फॉर अ रिलीजन विद सेक्रीफाइस। तो गांधी जी किसको मानते हैं, कौन सी चीज के लिए बहस करते हैं कि रिलीजन हो लेकिन सेक्रीफाइस, कुर्बानी के साथ हो, एंड रिस्पेक्ट फॉर अपोजिंग व्यूज, और साथ ही में जो दूसरे के व्यूज है उस पर भी हम क्या करें, उसके भी व्यूज को माने, ओके, उसकी भी इज्जत करें, राइट। सो दिस वाज द वीडियो एंड ओके, I have just like told you everything, all the terms have been discussed here in detail, and if you have enjoyed this video, you know what you have to do, you just have to hit the like button. I don't know what you're going to do, what are you going to do with that subscribe button or like button, it must be like click, man. Okay, I'm just like putting all the efforts here to make you understand about the answer writing and all. So if you have really enjoyed this video, just let me know in the comment section, and if you really want to be notified for all of our like videos and all, so you just have to subscribe to this channel. And yeah, thanks for watching.